Hello, good morning class. Welcome to the new topic, that is distribution of land resources in India. You will find the map of India physical features on page number 148. So let us start. India is a vast country covering an area of approximately 32 lakh 87,263 square kilometer. So you should remember this figure. This is an area of our continent. It consists of all kind of landforms, hot and cold desert, lofty mountains, ranges, large plains, coastal regions, plateaus, Iceland. So India is unique in itself. India is a unique continent itself because it covers almost all physical feature which we have. So let us start. First is Himalayas, the Himalayan. Himalayan is a mountain range. The northern part of India is bordered by mighty Himalayas because they are very lofty and the height is they have very extreme height. So the northern part of India is bordered by mighty Himalayas, bordered because it separates India from Asia, China, Pakistan, some part of Pakistan, that is Kashmir. The three parallel mountain ranges of the Himalayas run from west to east. तो फ्रॉम वेस्ट साइड से ईस्ट साइड तीन मेन माउंटेन रेंजेस चलती हैं. सबसे ऊपर हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स. इन क्लास 9th यू विल स्टडी इन मोर ब्रीफली. द हिमालयाज कवर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, पार्ट ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड सिक्किम. So you can understand how long is the mountain range of Himalayas. So you can see the Himalayan mountain ranges in the map, and you will see that the brown part, it is almost covering the northern India as well as northeast India also. It is the mighty Himalayan range where some of the highest peak of the world are located. तो हिमालय में दुनिया की कुछ सबसे हाईएस्ट पीक्स मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स भी है. K2, Mount Everest are example. The massive extent of these mountains, nearly 2400 kilometer, is home to a large variety of biotic, abiotic natural resource. अब इतने ज़्यादा वहाँ पे माउंटेन्स है कि वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्सेज हमको मिलते हैं. फॉर एग्जांपल मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी ओरिजिनेट होती है हिमालयन ग्लेशियर से. ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सारी ओरिजिनेट होती है कहाँ से? लेक मानसरोवर. Different kinds of biodiversity are found at different altitudes of the Himalayan range. अलग अलग एल्टीट्यूड पे अलग अलग बायोडाइवर्सिटी मिलती है. देखिए माउंटेन्स में जब आप नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो शुरुआत में आपको ग्रीनरीज मिलेंगी, पेड़ पौधे मिलेंगे. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ग्रीनरीज गायब होती जाएगी, पेड़ पौधे गायब होते जाएंगे. फिर आपको स्नो मिलेगा. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते. ठीक. क्या हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जानवर पालना. हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का प्लांटेशन करना. टेरेस फार्मिंग, ये फार्मिंग का एक तरीका है जो माउंटेन्स में किया जाता है, हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में. एंड ल्यूम्बरिंग मतलब जो भी पेड़ वहाँ पे इकोनॉमिक फ़ायदे के होते हैं, मतलब जो भी पेड़ जिनसे इनकम होती है उन पेड़ों को काटने का काम भी वहाँ पे होता है. सम ऑफ द मेजर लाइवलीहुड ऑफ द पीपल देयर, तो जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो अपने जीवन को जीने के लिए यही सारे काम करते हैं, क्योंकि माउंटेन्स में और कोई वर्क हो नहीं सकता है. Second is the northern plain. You will see in the map the green part. Green part covers very vast area again. It covers Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and some part of northeast also. The three major rivers such as Indus, Ganga, Brahmaputra, and their numerous tributaries originate in the Himalayas and flows down to plains. तो ये जितनी भी रिवर्स हैं आपकी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, ये सारी आपका हिमालय से ओरिजिनेट होती है, माउंटेन से, और बहते बहते कहाँ पे आती हैं, उतरती हैं, ये प्लेन्स में उतरती हैं, है ना. दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड वास्ट फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स बिकॉज द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ एंड हिमालयन इन द नॉर्थ. इट इज़ वेल नोन एज नॉर्दर्न प्लेन्स. तो ये हिमालय ऊपर और नीचे डेक्कन प्लेट्यू के बीच में आप देखेंगे ये ब्राउन वाला जो हिस्सा है, ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू भी कहलाता है. तो इसके ऊपर ये ग्रीन वाला हिस्सा कहाँ है? ये डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर और हिमालयाज़ के नीचे, वही बता रहा है. ये बहुत बड़ा ग्रीन एरिया कवर कर रहा है. ये एल्यूवियल प्लेन्स जो होता है क्योंकि इसमें एल्यूवियम होता है. नदियाँ अपने साथ माउंटेन से कई सारे मिनरल्स लेके आती हैं, सिल्ट डिपॉजिट लेके आती हैं, और नीचे जब ये प्लेन्स में आती हैं
कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन्स क्या होते हैं, वहाँ पे आके ये उनको फर्टाइल कर देती है। देखिए डायग्राम भी बना हुआ है प्लेन्स का, है ना। तो माउंटेन्स से जो रिवर्स आती हैं वो अपने साथ एल्यूवियम और मिनरल्स और सिल्ट ये सब ला के ज़मीन पे आके डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से नदर्न प्लेन्स बनते हैं। फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, अगर आप वेस्ट से ईस्ट देखेंगे तो इसमें पंजाब, है ना। द पंजाब प्लेन फॉर्म द डिपोजिशन ऑफ इंडस, सतलुज, रवि, बीस दैट कवर्स पंजाब एंड हरियाणा। ये 5 रिवर्स हैं जो आपके पंजाब से होकर निकलती हैं, इसीलिए उसको पंजाब कहा जाता है। 5 रिवर्स जाती हैं वहाँ से। फिर द गंगा उतरती है, जब द गंगा प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ गंगा, यमुना, कोसी। देखिए ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, जब नदियाँ आके किसी एक मेन रिवर से मिलती हैं वो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, और जब किसी मेन रिवर से नदियाँ कटती हैं अलग अलग होती हैं तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, क्योंकि वहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो गंगा जो है वो गंगा, यमुना, कोसी, तिस्ता, घाघरा दैट कवर्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो आप देखेंगे गंगा आती है, उसके साथ कई सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं और वो इतना बड़ा एरिया कवर करती है, जिसमें आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल ये सारा कवर होता है। तो ब्रह्मपुत्र वैली ये भी आपके लेक मानसरोवर के ईस्ट हिस्से से ओरिजिनेट होती है और मोस्टली ये आपका चाइना के अंदर ही चलती है पहले ब्रह्मपुत्र, वहाँ पर उसका नाम अलग होता है सेंगपो। और जब ये आपका अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है दिहांग वैली से, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तो ब्रह्मपुत्र वैली फॉर्म्ड द डिपोजिशन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट कवर्स असम। तो ये कहाँ से आती है, आपका अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और नॉर्थ ईस्ट में होता हुआ असम और इस रीजन में ये कवर करती है पूरा। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन द नदर्न प्लेन्स मेक्स इट पॉसिबल फॉर क्रॉप्स लाइक राइस। अब जो सबसे ग्रीन एरिया क्यों दिखाया है प्लेन्स को, क्योंकि ये सबसे फर्टाइल एरिया होता है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यहीं पे होता है। क्या क्या उगाया जाता है, जैसे राइस, वीट, मेज, शुगर केन, कॉटन टू बी ग्रोन है। कॉटन इज बेस्ट suitable in black soil Deccan Plateau, but here also the northern plains are the most densely populated part of India, with a number of major cities like New Delhi, Chandigarh, Lucknow, Patna etc. located here. मैंने कल भी बताया था कि प्लेन्स जो होता है वो इंसानों के रहने के लिए सबसे सूटेबल एरिया है। क्यों, क्योंकि कल हम लोगों ने कंपेयर करा था माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन, कोस्टल रीजन्स, डेजर्ट, इनमें क्या अंतर है। तो प्लेन्स जो है वो सबसे बेटर है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से डेवलप की जा सकती हैं, इंसान वहाँ पे आराम से रह सकता है, वहाँ पे इंसान अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें बना सकता है। जबकि माउंटेन्स और बाकी अनइवन सरफेस जहाँ पे हैं, मतलब बराबर इलाके नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे रहना इंसानों के लिए मुश्किल है। नेक्स्ट कम्स द डेक्कन प्लेट्यू। इफ़ यू विल अगेन नोटिस द मैप, द रीजन बिलो ग्रीन रीजन विच सीम्स ट्रायंगुलर, यू विल सी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, यू फाइंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द टेबल ऑफ मैप एंड जस्ट सी इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज़ ट्रायंगुलर ना, ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, तो इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, बिकॉज इट सीम्स टू बी एज पेनिनसुलर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। देखिए इंडिया के सेंट्रल पार्ट को कवर कर रहा है, बीच का हिस्सा है ना ग्रीन के नीचे वाला जो है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया covering the states of Maharashtra, Madhya Pradesh, Telangana, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka. A large number of rivers flows through। ये सारे स्टेट्स आ गए ना, ये याद रखना है प्लेट्यू रीजन्स कौन कौन से स्टेट कवर करता है हमें बेसिकली। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं प्लेट्यूज से, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सारी सदर्न रिवर्स हैं। जो ऊपर पड़ी थी ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, यमुना, गंधक, कोसी, ये सारी आपकी नदर्न रिवर्स हैं। नदर्न रिवर्स अलग हैं, सदर्न रिवर्स अलग हैं। एज वी हैव रेड अर्लियर, मिनरल्स आर एम्पली फाउंड इन दीज प्लेट्यूज। अब मिनरल्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कल कि जहाँ प्लेट्यूज हैं इसके नीचे ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का, इसके नीचे बहुत सारा मिनरल्स दबा पड़ा है, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो वही वो कह रहा है, एज वी हैव रेड अर्लियर, कल ही पढ़ा था, मिनरल्स आर एम्पली फाउंड इन दीज प्लेट्यूज, इसके नीचे बहुत सारा मिनरल्स छुपा हुआ है। कैश क्रॉप लाइक, अब यहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है, इसी वजह से यहाँ पे आपका कॉटन सबसे अच्छा उगता है। ऑयल सीड, टी, कॉफ़ी आर कल्टिवेटेड हेयर। कर्नाटका इज़ नंबर 1 इन कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी। अ नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, यहाँ पे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ भी हैं, जैसे आपने पढ़ा है जहाँ पे जानवरों के लिए जो है आपके फॉरेस्ट रिजर्व्स कर दिए गए। तो नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ यहाँ पे मिलते हैं। आर फाउंड इन दिस रीजन। द वास्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द डेक्कन्स आर ऑल्सो यूजफुल इन हार्नेसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी।
अब यहाँ डेक्कन प्लेट्यू से बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो बहती हैं, और क्योंकि प्लेट्यू से नीचे की तरफ बहती है तो बहुत तेज़ी से बहती हैं, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सकता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। जब हम वाटर की मदद से बिजली बनाते हैं, वाटर के फ्लो से बिजली बनाते हैं, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो कई सारे डैम्स बने हुए हैं साउथ में, जहाँ से आपका हार्नेस करके उसको बांध के, तभी उसको बांध कहा जाता है, डैम मतलब बांध, क्योंकि वहाँ पानी को बांध दिया जाता है और फिर उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द सदर्न रिवर्स ऑफ दिस पर्पस। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जाता है। प्लेट्यूज के नीचे आपको मिनरल्स के स्टोर हाउस मिलेंगे। यहाँ पे कैश क्रॉप जैसे कॉटन, टी, ऑयल सीड, कॉफ़ी, इनका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। नेशनल पार्क, सेंचुरीज बनती हैं, है ना। तो प्लेट्यूज रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देन कम्स डेजर्ट। डेजर्ट रीजन इंडिया के अंदर आपने थार डेजर्ट सुना हुआ है। देखिए, डेजर्ट के 3 टाइप्स होते हैं, कोल्ड डेजर्ट, कूल डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। हाँ, इंडिया के अंदर कोल्ड डेजर्ट भी है और हॉट डेजर्ट भी है। हॉट डेजर्ट सबको पता है, राजस्थान, जिसको हम लोग जानते ही हैं, थार डेजर्ट। और एक कोल्ड डेजर्ट भी है जिसको बहुत कम लोगों को पता है, लद्दाख में सिचुएटेड है, जो बहुत छोटा सा एरिया आपका पड़ता है, नुब्रा, है ना, जिसके वहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट भी मिलता है। तो जिसको वाइट डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ की सैंड जो है वो वाइट है ना। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर आपको कोल्ड डेजर्ट भी मिलेगा और थार डेजर्ट भी मिलेगा। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हॉट एंड सैंडी थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो इंडिया के अंदर कोल्ड डेजर्ट भी है और हॉट डेजर्ट भी है। कूल डेजर्ट एक और होता है, वो इंडिया के अंदर नहीं है। द टेम्परेचर एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द डेजर्ट रीजन्स आर एक्सट्रीम एंड हॉस्पिटेबल, है ना। तो डेजर्ट का आपको पता ही है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, है ना। एज द रिजल्ट दीज आर एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। एज द रिजल्ट दीज आर एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली मतलब यहाँ पे बहुत कम आबादी होती है, दूर दूर तक लोग बसे होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। However, constructed irrigation canals like Indira Gandhi Canal in the Rajasthan and introduced modern agriculture techniques had been led to the cultivation of crops in desert region। देखिए, डेजर्ट में पानी तो होता नहीं है, तो उनके आसपास के रीजन से जहाँ से नदियाँ निकलती है वहाँ पे डैम्स बना के वहाँ से पानी को डेजर्ट रीजन्स में भेजा जाता है। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम होते हैं, क्योंकि डेजर्ट जो होता है यहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलते हैं, रेत। और रेत की क्या खासियत है कि ये बहुत जल्दी टेम्परेचर को अडॉप्ट करता है। ठंडा भी बहुत जल्दी होगा, गर्म भी बहुत जल्दी होगा। तो दिन में जब धूप होती है तो इन डे बहुत जल्दी ये टेम्परेचर रेस करता है, क्योंकि ये सॉइल नहीं है। सॉइल धीरे धीरे टेम्परेचर रेस करता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, जैसा हमको प्लेन्स में अपने एरिया में मिलता है। बट डेजर्ट में उल्टा है। डेजर्ट में क्योंकि वहाँ सैंड होता है, और सैंड ड्यून्स मतलब रेत के जो कण होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे डेजर्ट रीजन में दिन जो होंगे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, और रात जो होगा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी होगी। तो वहाँ पे दोनों टेम्परेचर्स आपको बहुत एक्सट्रीम मिलने वाले हैं। इसी वजह से वहाँ पे लोग जो हैं बहुत दूर दूर बसते हैं और बहुत कम बसते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी है और वहाँ पे खेती नहीं हो पाती। खेती करने के लिए वहाँ पे डैम्स बना है इंडिया के अंदर, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल बना हुआ है, जिससे राजस्थान की तरफ पानी को भेजा जाता है, जहाँ पे लोग खेती कर सकें, क्योंकि वहाँ पे वाटर रिसोर्स बहुत कम है। Last is the coastal plain. You can see in the map again. It is the third last number, and you will see it is covering. Coastal plain is a region which is the end part of the continent towards the sea. तो आप देखेंगे एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है। ये जितना भी एरिया इंडिया का नीचे वाला जो नोक की तरह दिख रहा है, ये जितना भी पार्ट है ये आपका कोस्टल रीजन है। देखिए, एक लाइन बनी हुई है कोस्टल प्लेन की। क्यों? क्योंकि ये ओशन के कांटेक्ट में आता है, कोस्ट इसीलिए कहा जाता है इसको। सो लेट अस स्टार्ट। कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। आपका अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये आइलैंड भी इंडिया के ही पार्ट है, तो दोनों इसी में कवर कर लेंगे। इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन द 3 साइड। 3 है, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, इसीलिए ट्राई सी भी कहा जाता है। तो इंडिया इज सराउंडेड बाय द 3 ऑन द 3 साइड, बाय सी ऑन द 3 साइड। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, इंडियन ओशन इन द साउथ। नीचे से देखेंगे साउथ में तो इंडियन ओशन, वेस्ट की तरफ देखेंगे तो अरेबियन ओशन, और ईस्ट की तरफ देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल। तो 3 हो गई साइड। द प्लेन्स बॉर्डरिंग दीज सीज आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन। तो इंडिया का वो पार्ट जो इस सी से टच करके चल रहा है, नीचे वाला, है ना, उसको ही हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं। मैप में आपने देख लिया। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मेट एट कन्याकुमारी। तो जो ईस्टर्न और वेस्टर्न का कोस्टल प्लेन है वो कहाँ पे मिलता है? कन्याकुमारी में मिलता है, नीचे का जो पॉइंट है बिल्कुल एंड का। तो इंडिया का लास्ट पॉइंट आपका कन्याकुमारी है, जो कि आपका तमिलनाडु में आता है। द सदर्न टिप ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे साउथ की सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट दिखता है आपको नोक में, वो कन्याकुमारी है। वहाँ पे आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न आके मिलते हैं। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड आर लोकेटेड एमिड द सी, नेमली, अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको
अंडमान निकोबार आइलैंड मिलेगा। और अगर आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको, सॉरी वेस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको लक्षद्वीप मिलेगा, और ईस्ट की तरफ देखेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड मिलेगा आपको, है ना। तो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड आर लोकेटेड एमिड द सी नेमली लक्षद्वीप आइलैंड इज़ द अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, है ना। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ आपको अंडमान निकोबार आइलैंड की बहुत बड़ी चेन मिलेगी, और इधर लक्षद्वीप की मिलेगी। इनके बारे में बहुत डिटेल में क्लास 9th में है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। बस हमको यहाँ पे ये देखना है कि इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर हैं। तो लगभग सारे हैं। आपको माउंटेन्स मिलेंगे, आपको प्लेन्स मिलेंगे, आपको डेजर्ट मिलेगा, आपको कोस्टल रीजन मिलेगा, आपको प्लेट्यू रीजन मिलेगा, आपको आइलैंड मिलेगा। क्लियर है। अब क्योंकि ये सी के पास है तो यहाँ पे क्या वर्क हो सकता है, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर आर मेन लाइवलीहुड। नदी के पास रहने से यहाँ लगातार बारिश होती रहती है ना। इसीलिए यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है, क्योंकि सी के टच में है। तो और फिशिंग चूँकि नदी के पास है तो वहाँ पे फिशिंग एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो सकता है। तो फिशिंग, एग्रीकल्चर, मेन लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द आइलैंड। राइस एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन। तो साउथ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और वहाँ पे लगातार बारिश होती है, इसीलिए वहाँ पे राइस आसानी से उगाया जा सकता है। और दूसरा वहाँ पे कोकोनट की भी फार्मिंग होती है। वहाँ पे देखा होगा साउथ में कोकोनट फेमस है, क्योंकि वो वहीं पे ही होता है कोस्टल रीजन की वजह से। ऊपर मैप में दिख रहा होगा आपको। थैंक यू क्लास।